आदाब है नाजरीन, आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को रियासत भर में फरोग देने के लिए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से इक़दाम जारी। रियासती वजीर IT KTR ने वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के वर्चुअल सेशन से किया खिताब। पाँच फरवरी से खानगी दवाखानों में कोरोना वैक्सीन देने का नज़्म किया जाएगा। डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन का बयान। हुसैन सागर की खूबसूरती में इजाफे के लिए हमडा की जानिब से तामीरी काम आखिरी मराहिल में। सयाहों के लिए पुरकशिश बनाना काम का मकसद। रूबी न्यूज़ की खुसूसी रिपोर्ट। मलकपेट पुलिस ने अंदरून 24 घंटे 2.5 साला मासूम लड़की के अगवा के केस को हल कर लिया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद की मीडिया कॉन्फ्रेंस। देखते हैं खबरों की तफसील। रियासती वजीर IT KT रामाराव ने वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की जानिब से वर्चुअल तरीक़ेकार पर मुनक़्क़िदा एक पैनल सेशन में हिस्सा लिया। अपने खिताब में रियासती वजीर KTR ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से शोबे ज़राअत, हेल्थ केयर और तालीम में इस्तेमाल की जा रही इख्तिराई टेक्नोलॉजीज़ का तफसीली तौर पर तज़किरा किया। उन्होंने बताया कि रियासत भर में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को फ़रोग देने के लिए हुकूमत T-Fiber प्रोजेक्ट के जरिए इन्वेस्टमेंट को यकीनी बना रही है। Your questions in the chat box, and I'll try to include as many as possible. I'll talk about this in detail again once once the second part starts. So let's dive in. Minister, I would like to begin with you. At one of your recent events, you actually said that we need to redefine IT in India, and it shouldn't stand for information technology anymore, but intelligence technology. Can you talk a little bit more about that and unpack that thought for us? Well, thank you, Diksha. Thank you for this opportunity. Once again, unreal times, in fact, surreal world that we live in. We all have to kind of not meet at Davos, but instead, meet virtually like this. But nevertheless, good seeing you all. Good, good to get on a forum which talks about harnessing technologies and harnessing good ideas, for the humanity at large and for all of us in these testing times. What I meant when I said we have to redefine IT, we have to redefine IT. I had meant that the technologies that have been benefiting all of us, that are the technologies that have been the technological changes that have been sweeping the entire landscape for the last 2.5, 3 decades. Now, I think we need to take a closer look at the overall situation and understand that there are technologies which can really help our most common problems that are prevalent across the world. In fact, our Honorable Chief Minister never fails to remind us. Each and every time we talk to him about any kind of technology, the first question he asks us is, how does it help positively? How does it positively impact a common man? So therefore, the point I'm trying to make is that any technology which does not have a societal impact, in my humble opinion, is going to be futile. Now, intelligent technologies. The point I was trying to make there was, if you look at something like artificial intelligence, which in fact we had declared last year in Telangana as the year of AI. We have used AI and its applications in a number of fields like agriculture, like healthcare, and we've been able to come out with some tangible outcomes which have benefited our farmers, which have benefited. डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन तेलंगाना हुकूमत डॉक्टर श्रीनिवास ने कहा है कि 5 फरवरी से खानगी दवाखानों में कोरोना वैक्सीन देने के इक़दाम किए जाएंगे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि रियासत भर में 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीन देने का आगाज़ किया गया था और ताहाल 63% हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि रियासत में सबसे ज़्यादा कोत्तागुड़ में 95% वैक्सीन देने के इक़दाम किए गए। उन्होंने कहा कि कई एक डॉक्टर्स ने मीडिया से अपील की है कि कोरोना वैक्सीन के असरात से मुताल्लिक़ बग़ैर तहक़ीक़ के न्यूज़ जारी न की जाए।
సో అందరికీ నమస్కారం. మనందరికీ తెలిసిన విషయమే, మనం జనవరి 16 నుంచి మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కోవిడ్-19 వ్యాక్సినేషన్ ప్రోగ్రామ్ని రోల్అవుట్ చేసుకోవడం జరిగింది. మొదటగా గవర్నమెంట్ హెల్త్ కేర్ వర్కర్స్కి వ్యాక్సిన్ అందించడం జరిగింది. ఇప్పుడు మనం ప్రైవేట్ హెల్త్ కేర్ వర్కర్స్లో కూడా వ్యాక్సినేషన్ ప్రోగ్రామ్ అందిస్తున్నాం. సో గవర్నమెంట్ హెల్త్ కేర్ వర్కర్స్లో ఆల్మోస్ట్ 63% వరకు కూడా మనకున్న టార్గెట్కి 63% వరకు, అంటే 1,10,000 మందికి మనం వ్యాక్సినేషన్తో కవర్ చేసుకున్నాం. అలాగనే ప్రైవేట్ వర్కర్స్ వచ్చేసేసి మనం ఒక 45% ఈరోజు వ్యాక్సినేషన్ అందించాం. రాబోయే రోజులు అంటే అప్ టు 5th వరకు కూడా ప్రైవేట్ హెల్త్ ఫెసిలిటీస్లో ఈ కోవిడ్-19 వ్యాక్సినేషన్ రోల్అవుట్ ప్రోగ్రామ్ని కంటిన్యూ చేయడానికి డిసైడ్ చేయడం జరిగింది. సో ఈరోజు వచ్చేసేసి ఎస్పెషల్లీ మన ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ తెలంగాణ అండ్ ఆల్సో తానా, మన ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ నర్సింగ్ హోమ్స్ అసోసియేషన్లో వీళ్ళతోని, అండ్ అట్లనే హాస్పిటల్స్ ఏదైతే కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ ఇతరత్ర టీషా వీళ్ళతోని ఒక మీటింగ్ పెట్టుకోవడం జరిగింది. అండ్ ఎస్పెషల్లీ బికాజ్ లాస్ట్ 3 days నుంచి కూడా ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్లో వ్యాక్సినేషన్ చేస్తున్నాం. కొంచెం రెస్పాన్స్ అంటే వివిధ కారణాల వల్ల కొంచెం ఇదిగా ఉండటం వల్ల ఈరోజు వాళ్ళతోని ఒక రివ్యూ పెట్టుకోవడం జరిగింది. ఇష్యూస్ ఏమున్నాయి, తర్వాత వాటిని ఎట్లా రెక్టిఫై చేసుకోవాలి, అట్లనే ఈ వ్యాక్సిన్ తీసుకోవడానికి వాళ్ళని ఎలా మొబిలైజ్ చేయాలి, ఎలా మోటివేట్ చేయాలి అనే ఉద్దేశం. మనందరికీ తెలిసిన విషయమే, ఇంకా కరోనా అనేది మనం కరోనా ముప్పు అనేది పూర్తిగా తొలగిపోలేదు. ఇంకా అది మన మధ్యలోనే ఉంది, మనతోనే ఉన్నది. అది కొత్త రూపాల్లో అంటే న్యూ వేరియంట్స్ రూపంలో కూడా మనకు వస్తున్నది. మనం ప్రపంచంలోని ఇతర దేశాలు కూడా మనం చూస్తున్నాం. ఈరోజు యుఎస్ఏ అనుకోండి, అలాగనే యూకే అనుకోండి, ఇతరత్ర యూరోపియన్ యూనియన్ కంట్రీస్ అన్ని ఇంకా కూడా ప్రతిరోజు కూడా వేలాది మంది మరణిస్తున్నారు, లక్షలాది మంది ఈ వ్యాధి బారిన పడుతున్నారు. సో అదృష్టవశాత్తు మన దేశంలో, మన రాష్ట్రంలో ఇలాంటి పరిస్థితులు లేవు. బట్ అలా అని చెప్పేసేసి రేపు ఎలా ఉంటుందో తెలియని పరిస్థితుల్లో మనకి వ్యాక్సిన్ అనేది ఈరోజు మనకు ఒక వెపన్లా దొరికింది. ఈ వ్యాక్సిన్ అనేది మనం నిన్ననే ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పర్ట్స్ కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఈ వ్యాక్సిన్ ద్వారా కొత్తగా వచ్చే వేరియంట్స్ని కూడా మనం సమర్థంగా ఎదుర్కోవచ్చనే అవకాశం ఉందని చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి రాబోయే రోజుల్లో పరిస్థితులు ఎలా ఉంటాయో తెలియదు. ఆల్రెడీ మనకి ప్రభుత్వం ఫ్రీ వ్యాక్సిన్ అందించడం జరుగుతుంది. కాబట్టి మన గవర్నమెంట్ హెల్త్ కేర్ వర్కర్స్ అయితేంది, ప్రైవేట్ హెల్త్ కేర్ వర్కర్స్ ఎవరైతే గత 10 నెలల నుంచి కూడా ఈ కోవిడ్ మీద ఈ పోరాటంలో ముందంజలో ఉన్నారో వాళ్ళకి వ్యాక్సిన్ అందించే క్రమంలో భాగంగా అందరికీ ఎవరైతే ఎలిజిబుల్ బెనిఫిషరీస్ ఉంటారో వాళ్ళందరికీ వ్యాక్సిన్ रियासी वडा टी श्रीनिवास यादव और मल्ला रेड्डी ने सिकंदराबाद में तकरीबन 200 डबल बेडरूम्स मकानात का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर खिताब में श्रीनिवास यादव ने कहा कि जिला तेलंगाना KCR की क़यादत में तकरीबन 16 करोड़ की लागत से 200 डबल बेडरूम्स मकानात तैयार किए गए हैं। उन्होंने बताया कि मुस्तहिक़ीन में ये मुफ्त तकसीम किए जा रहे हैं। उन्होंने बीजेपी क़यादीन पर तनक़ीद करते हुए कहा कि मरकज़ी हुकूमत के मकानात की स्कीम में कहाँ मुफ्त तकसीम की जा रही है, वो इसकी वजाहत करें। रियासती वज़ीर मल्ला रेड्डी ने सिकंदराबाद के गांधीनगर और कंटोनमेंट नगर के इलाके में मुनक़्क़िदा डबल बेडरूम मकानात की इफ्तिताही तक़रीब को ख़िताब किया। उन्होंने अपने ख़िताब में कहा कि मुल्क भर में किसी भी रियासत में मुफ्त डबल बेडरूम मकानात तक़सीम नहीं किए जा रहे। इस तरह की स्कीम ज़िला KCR की क़यादत में सिर्फ तेलंगाना रियासत में अमल में लाई जा रही है। उन्होंने कहा कि अनक़रीब ग्रेटर हैदराबाद में 1 लाख और रियासत भर में 2.5 लाख डबल बेडरूम मकानात की तक़सीम होगी। साबिक़ वज़ीर और सीनियर कांग्रेस क़ायद पुन्नाला लक्ष्मैया ने मीडिया से बात करते हुए सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद के खुतबे को झूठ का पलिंदा करार दिया। उन्होंने कहा कि सदर जमहूरिया हिंद से झूठ बुलवाया गया है, जबकि किसी भी मज़हब के मानने वालों में झूठ को गलत करार दिया गया है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ कमीशन पर अमल करने और उसकी तायीद करने की बात मुज़िका ख़ैज़ करार देते हैं और इंतख़ाबात के मौके पर बीजेपी ने इस तरह का वादा किया था, इसकी वज़ीर-ए-आज़म को वज़ाहत करनी चाहिए।
2022లోగా రైతుల ఆదాయం రెట్టింపు అవుతుంది చేస్తామన్నారు. 2022 ఇంకెన్ని రోజులు ఉందా? ఇంకో సంవత్సరమే కదా. యూపీఏ పరిపాలనలో మద్దతు ధరలు 2004 నుంచి 2014 వరకు సుమారు సగటున 10%, 8 నుంచి 12% పెంచింది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం. మనకు ఉదాహరణకు వడ్ల ధర మన రాష్ట్రంలో 540 ఉండింది 2004. 2014 వరకు అది 1500 పైచిలకు అయింది. ఇప్పుడు 1800 పైచిలకు అనుకుంటాను, అంతే కదా. అంటే ఈ 7 ఏళ్ల పరిపాలనలో 1 నుంచి 5%, సగటున 2.5% మాత్రమే మద్దతు ధర పెంచిన బీజేపీ ప్రభుత్వం कौमी अक़लियती कमीशन के नायब सरनशीन आतिफ रशीद ने जुमा को मक्का मस्जिद का मुशाहिदा किया और नमाज जुमा मक्का मस्जिद ही में अदा की। वक्फ बोर्ड के अहदेदार खतीब इमाम मक्का मस्जिद मौलाना रिजवान कुरैशी और कमेटी के दीगर जिम्मेदारान भी इस मौके पर मौजूद थे। मक्का मस्जिद में वाक़ क़बूर की उन्होंने ज़ियारत भी की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए आतिफ रशीद ने कहा कि वह 2014 में सबका साथ सबका विकास का जो नारा शुरू किया गया था 2019 तक वो सबके विश्वास में तब्दील हो चुका है। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से तरक्की का पहिया बिला लिहाज मजहब व मिल्लत आगे चलेगा और आखिर तक वो इस पर कायम रहेंगे। 2014 में दिल्ली में जो सबका साथ और सबके विकास का एक सफर शुरू हुआ था, वो सफर 2019 तक पहुंचते पहुंचते सबके विश्वास में परिवर्तित हो गया। और वो सबके विश्वास को जीतने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी जी के नेतृत्व में विकास का पहिया जो तेलंगाना तक पहुंचा है, उस विकास के माध्यम से आज विश्वास को अर्जित करने के लिए मैं तेलंगाना में आया हूं। और तेलंगाना में जो हमारे यहाँ पे सभी समुदाय के, चाहे वो जैन हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, सभी समुदाय के बीच में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं की समीक्षा भी की जाएगी। किस हद तक उनके बीच में इस लाभ को पहुंचाया जा रहा है उसकी समीक्षा होगी। उस समीक्षा की बैठक के बाद गवर्नर साहब को मेमोरेंडम दिया जाएगा कि यहाँ पर किसी समुदाय की क्या आवश्यकताएं हैं, क्या जरूरतें हैं। और मैं तेलंगाना के आवाम, खासकर यहाँ के अल्पसंख्यक समुदाय, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे वो क्रिश्चियन समाज हो, जिस समाज से भी हो, उसको ये विश्वास दिलाने के लिए आया हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सबका विश्वास जीतने का सपना है, हम उस विश्वास को आपके बीच में अर्जित करेंगे विकास के माध्यम से। और ये यकीन रखिएगा कि हमारी तरफ से केंद्र सरकार से जो विकास का पहिया चलेगा, वो बिना जात, बिना धर्म किसी को भी सामने आने नहीं देगा। कतार में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति का उदय ही करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस रुकन पार्लिमान कोमट वेंकट रेड्डी ने कहा है कि सदर जमहूरिया हिंद के खुतबे के मौके पर रुकन पार्लिमान का पार्लियामेंट में मौजूद रहना ज़रूरी है, लेकिन मरकज़ी हुकूमत के ज़रिए क़वानीन के ख़िलाफ़ किसान एहतजाज कर रहे हैं। उनकी तायीद में मुल्क के 18 अपोजिशन सियासी जमातें सदर के खुतबे का बाइकआउट कर चुकी हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने ये किसानों के भलाई के इक़दाम किए थे, लेकिन बीजेपी ये मुमकिन नहीं बना पा रही। उन्होंने कहा किसानों को वाजिब कीमत अदा करते हुए अनाज की खरीदी को मुमकिन बनाने और ज़रिए क़वानीन से दस्तबरदारी इख्तियार हुकूमत को करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि टीआरएस और बीजेपी के दरमियान मैच फिक्सिंग है और ये दोनों जमातें दिल्ली में दोस्त हैं जबकि गली में दुश्मन जाहिर कर रही हैं। స్థాయిని పోల్చుతూ మాట్లాడుతున్నాడు. ప్రపంచంలో ఎక్కడా లేదు, ఎలక్ట్రిసిటీ ఇస్తారట ప్రపంచంలో ఎక్కడా లేదు, మేము ఐటీ పార్కులు తీసుకొచ్చినాం ప్రపంచంలో ఎక్కడా లేదు, ప్రతిదాన్ని పోలుస్తూ ఉన్నాడు. అయితే నేను ఇక్కడ నిజమే, నువ్వు ప్రపంచంలో నీకు అవార్డు ఇవ్వాల్సింది ఏమిటంటే వ్యవస్థలన్నీ నాశనం చేసినావు. నువ్వు ఇండస్ట్రీ మినిస్టర్గా, మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మినిస్టర్గా ఈరోజు హైదరాబాద్ మెట్రో డెవలప్మెంట్ అథారిటీని
పూర్తిగా నిర్వీర్యం చేసినావు. మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కేవలం ఆస్తి పన్నులు వసూలు చేసే వ్యవస్థ కింద మార్చినావు. ఎన్నికల కమిషన్ను పూర్తిగా నువ్వు గుప్పిట్లో పెట్టుకున్నావు. అందుకే నీకు ప్రపంచంలో ఎక్కడా లేని విధంగా ఇన్ని मजलिसी डिवीजन कॉरपोरेटर डॉक्टर समीना ने कोरोना वैक्सीन ले लिया है। उन्होंने सुपर बाजार रैन बाजार में वाक़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल पहुंचकर अपने अफराद ख़ानदान और हॉस्पिटल के अमले के साथ मस्कूरा वैक्सीन लिया। बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वैक्सीन के कोई मुज़िर असरात नहीं है, जबकि उन्होंने पहली डोज ली है। 28 दिन बाद वो दूसरी डोज जो कोविशील्ड वैक्सीन है उसकी वो दूसरी डोज लेंगे। मैं डॉक्टर समीना तालाब चंचरम की कॉरपोरेटर आज यहाँ पर वैक्सीन के लिए आई हुई हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वैक्सीन लिया है कोविशील्ड कंपनी का, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो पुणे में है। ये वैक्सीन एक लेने के बाद फिर 28 डेज़ के बाद दूसरा वैक्सीन लेना है और सेम यही कंपनी का। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि ये वैक्सीन से 1-2 दिन आपको थोड़ा सा वीकनेस फील होता और बॉडी पेन, थोड़ा सा टेम्परेचर रहेगा, जैसा कि दूसरे वैक्सीनों की तरह। कोई दूसरा कोई और अलग कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है जो काफ़ी लोग डरा रहे हैं कि जो ना ऐसा होता वैसा होता। ये ज़रूरी है कोविड के लिए, क्योंकि सेकेंड फेज़ भी चल रहा है और फिर सेकेंड फेज़ में थोड़े केसेस देखने को मिले हैं, तो बेहतर रहता है वैक्सीन लेना और आप सबकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है लेना। और खामखा के गलत प्रोपोगंडा करके आम तौर पे पब्लिक में इमेज ख़राब कर रहे हैं कि जो ना वैक्सीन से ऐसा हो जाता वैसा हो जाता। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी लिए, हस्बैंड लिए, बच्चे लिए मेरे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, कोई मुश्किल की बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सिंपल जैसा कि बॉडी पेन ये दूसरे वैक्सीन में भी रहता, उसी तरीक़े से ये भी वैक्सीन का एक हिस्सा है। और इसको गलत प्रोपोगंडा मत करिए गैर ज़रूरी, क्योंकि इसको रोकथाम ज़रूरी है। हमको कोविड से लड़ना ज़रूरी है, फाइट करना ज़रूरी है, हम अपने बचाना ज़रूरी है अपने लोगों को सबको, तो फिर हम सब मिल के मुकाबला करना बेहतर रहता। अब यहाँ पर सुपर बाज़ार के हॉस्पिटल में स्टाफ भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कोऑपरेट करे, पूरा टेस्ट करके वो करके पूरा रजिस्ट्रेशन नंबर, क्योंकि अपने फ़ोन में आ रहा हो वो देख के वो लिंक, उनके पास एक शीट है, वो ट्राई करके अपना थंब इम्प्रेशन लेके पूरा एक सिस्टमेटिक तरीके से इंजेक्शन लेने के बाद फिर हाफ एन आवर ऑब्जर्वेशन में रख के बिल्कुल ओके हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह। अब घर वापस जा रही हूँ। शुक्रिया। सीनियर कांग्रेस कायद हनुमंत राव ने मीडिया से बात करते बताया कि मरकजी हुकूमत ने ज़रूरी कवानीन को नाफिज करते हुए कॉर्पोरेट इदारों को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की है। उन्होंने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर ज़रूरी कवानीन से दस्तबरदारी इख्तियार करे। हनुमंत राव ने बताया 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर रैली पुरअमन तौर पर मुनक़्क़िद की जा रही थी, लेकिन हुकूमत और पुलिस ने इश्तियाल अंगेज़ बना दिया। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी के वाक़े की वो मज़म्मत करते हैं और मुल्क की आवाम को बीजेपी हुकूमत की वजह से ऐसा दिन देखना पड़ा है। కేసులు పెట్టడం, నీరు గార్చే పద్ధతి, ఇలాంటి ఆలోచన నరేంద్ర మోడీ నీకే సాగిందిరా బాబు, నువ్వే చేయగలుగుతావు? 2 నెలల నుంచి చేసినటువంటి రైతుల బాధలు అర్థం చేసుకోకుండా కోట్లు గడించినటువంటి పెద్ద పెద్ద కార్పొరేట్ సెక్టర్ కు లాభం చేయాలనేది నీరు గార్చే పని ఇది. అయిపోయిగా పోలీసు రైతుల మీద కేసులు పెడతారు, లోపల వేసేస్తారు,
మూమెంట్ అయిపోతుంది. ఇప్పటికే కొన్ని రైతు సంఘాలు వెనుకకు పోతున్నాయి. మరి నాకు అర్థం కాదు, ఆయన ఏదో డీప్ సిద్ధు నాకు సంబంధమే లేదని నువ్వు ఎందుకు పోయినావు రాబోయాడికి? నువ్వు బీజేపీ సింపథైజర్వే, నువ్వు ఏ పార్టీ సింపథైజర్? हुसैन सागर पर बनाए गए कट्टे की खूबसूरती में इजाफा करने के लिए हैदराबाद मेट्रो डेवलपमेंट अथॉरिटी हमडा सरगर्म हो चुकी है और खूबसूरती के काम आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं। हुसैन सागर, जिसे आमतौर पर टैंक बेंड कहा जाता है, हैदराबाद को आने वाले सयाहों और ख़ुद शहरियों के लिए एक पुरकशिश मकाम है। टैंक बेंड के मज़कूरा कामों के सिलसिले में रूबी न्यूज़ के नुमाइंदे एम ए रशीद की ये रिपोर्ट पेश खिदमत है। हैदराबाद और सिकंदराबाद के दरमियान वाक़े हुसैन सागर, जिसे आमतौर पर टैंक बेंड कहा जाता है, उसको खूबसूरत बनाने के काम हमडा की जानिब से किए जा रहे हैं। वजारत बालदी नज़्म व नसक़ के टी रामाराव की रास निगरानी में टैंक बेंड की सूरतगिरी की जा रही है। दरअसल हुसैन सागर दिल की शक्ल की एक झील है, जिसे इब्राहिम खलील कुतुब शाह ने 1563 में बनाया था। दरियाए मूसा के पानी को रोककर ये बनाई गई थी, जिसका रकबा तकरीबन 5.7 स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि इस झील की गहराई 32 फीट बताई जाती है। इस लेक को हुसैन शाह वली के नाम से मौसूम किया गया था। शहर हैदराबाद को हिमायत सागर और उस्मान सागर से क़ब्ल इसी झील से पानी सरबराह किया जाता था। 1946 में पहली मरतबा टैंक बेंड की चौड़ाई में सर मिर्ज़ा इस्माइल, जो हैदराबाद के प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी निगरानी में इजाफ़ा किया गया था, जबकि दूसरी मरतबा 1987-88 में NT रामाराव चीफ मिनिस्टर मुत्तहदा आंध्र प्रदेश की निगरानी में इसकी खूबसूरती का काम किया गया था और 1992 में 450 टन वज़नी बुद्धा का मुजस्सिमा इसमें नस्ब किया गया था। रूबीन्स के नुमाइंदे एम ए रशीद के मुताबिक टैंक बेंड के दोनों तरफ ग्रेनाइट का काम किया गया है, जबकि कास्ट आयरन रेलिंग, ग्रिल्स और खूबसूरत खंबे नस्ब करते हुए उन पर लैम्प्स लगाए जा रहे हैं। मज़कूरा काम आखिरी मराहिल में है, ताहम सयाहों को मज़कूरा काम बहुत पसंद आया है और देखने वाले इसकी तारीफ़ और सिताइश कर रहे हैं। हिंदुस्तान की मुख्तलिफ़ रियासतों से अवाम हैदराबाद का रुख करती है और यहाँ की तारीख़ी इमारतों के साथ साथ टैंक बेंड पर भी तौक़ुफ़ करते हुए इसमें नस्ब किए गए गौतम बुद्ध के मुजस्सिमे का भी मुशाहिदा करती है। टैंक बेंड पर किए जा रहे मज़कूरा काम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर काफ़ी मकबूल हो चुके हैं। हुकूमत ख़ासकर KTR के काम की सिताइश की जा रही है। वाज़ेह है कि कुछ महीनों से दुर्गम चिरू, केबल ब्रिज और मौज़म जाही मार्केट पुरकशिश मकामात बन चुके हैं। इसी सफ़ में अब टैंक बेंड भी शामिल हो जाएगा।
कुमार है। मैं चेन्नई से आया हूँ आज, और मैं ये हुसैन सागर लेक घूमने आया हूँ। यहाँ पे मैं कई साल पहले आया था और इतना अच्छा व्यवस्था नहीं था। अभी देख रहा हूँ कि अच्छी व्यवस्था यहाँ के सरकारी विभाग ने किया है, जो सराहनीय है। और हम चाहते हैं कि बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ आएंगे और यहाँ पे जो इसका बनाया है वो अच्छा लगेगा सभी लोगों को। मैं हरियाणा से आया हूँ यहाँ पे घूमने के लिए, और लास्ट टाइम मैं 1-1.5 साल पहले आया था तो इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी, और फुटपाथ भी बहुत बढ़िया बनाया हुआ है। ग्रिल वगैरह बहुत अच्छी लगा दी, बहुत सेफ्टी का ध्यान रखते हुए बहुत बढ़िया काम किया हुआ है। और सफाई पे भी काफ़ी अच्छा ध्यान दिया हुआ है, सफाई काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, और सफाई वर्कर्स भी घूम रहे हैं सफाई करते जगह जगह, और काफ़ी अच्छा फुटपाथ है। फुटपाथ भी बहुत क्लियर है, और प्रशासन अच्छा काम कर रहा है यहाँ पे, और म्युनिसिपल जो लोग हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, सेफ्टी का ध्यान दे रहे हैं, और लेक भी काफ़ी साफ़ नज़र आ रही है। बस काफ़ी अच्छा लग रहा है, पहले जो आए थे उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा सुधार है अभी। मेरा नाम मोहम्मद यूनुस परवेज़ है। मैं इत्तेफाक से पैराडाइज की तरफ जा रहा था। टैंकमेंट पे जो नया काम चल रहा देख के खुशी हुई। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ हमारे म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर के.टी. रामाराव साहब कि आप तवज्जो करके हैदराबाद की टैंकमेंट पे की भी, हैदराबाद की एक पहचान टैंकमेंट से भी है, इसको आप अच्छा ब्यूटिफिकेशन कर रही। या टाइल्स वगैरह भिजाए गए, नए रेलिंग्स लगाए, लैंप्स वगैरह से सजाएगा। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हुकूमत से, आप टैंकमेंट पे कर रही बहुत अच्छा है, मगर बना दे के ऐसा छोड़ देना नहीं, केयरलेसनेस नहीं करना। GHMC को भी आप हिदायत दे कि ये खूबसूरती बरकरार रखे। अब म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर के.टी. रामाराव साहब और अरविंद कुमार साहब जैसा बीच में मौजमजा मार्केट में भी तवज्जो करे थे, और हम ये एक हुकूमत के जहन में ये भी तवज्जो दिलाना चाह रहे कि ज़्यादा न्यू सिटी की तरक्की पे आप तवज्जो दे रहे, ओल्ड सिटी की के काम पे भी तवज्जो दीजिए। चारमीनार पेडिस्ट्रियन प्रोजेक्ट। आइए देखते हैं फिर के बाद की खबरें। रियासत तेलंगाना में जुमा को कोविड के तकरीबन 197 नए केसेस दर्ज किए गए। सुबह जारी किए गए आदाद व शुमार के मुताबिक 2 अमवात की तस्दीक हो चुकी है, जबकि रियासत भर में जुमला अमवात 1596 हो चुकी हैं, जबकि मजमूई केसेस की तादाद 2,94,120 तक पहुंच चुकी है। पंचायत सेक्रेटरी मानसापल्ली और उनके साथ दीगर 2 साथियों को रुश्वत की रकम हासिल करते हुए रंगे हाथों एंटी करप्शन ब्यूरो के ओहदेदारों ने हिरासत में लिया। तफसीलात के मुताबिक पंचायत सेक्रेटरी मानसापल्ली के अलावा सरपंच के शौहर और डिप्टी सरपंच को तकरीबन 5,50,000 रुपये रुश्वत हासिल करते हुए रंगे हाथों ACB ओहदेदारों ने हिरासत में लिया। तफसीलात के मुताबिक एक रियल एस्टेट कंपनी से जो डीलिंग की गई थी वो तकरीबन 7,50,000 रुपये पर मुश्तमिल थी। इस सिलसिले में जे गीता पंचायत सेक्रेटरी मानसापल्ली ग्राम पंचायत के अलावा मानसापल्ली सरपंच के शौहर कंडी रमेश और डिप्टी सरपंच बी नरसिम्हा यादव को ACB ओहदेदारों ने जाल बिछाकर हिरासत में लिया। जुमला रकम 7,50,000 रुपये में बात हुई थी, ताहम 5,50,000 रुपये रकम हासिल करते हुए उन्हें हिरासत में लिया गया, जिसके बाद उन्हें ACB अदालत में पेश किया गया। फोटो ఉంటుంది రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీ, దాంట్లో ముత్యంరెడ్డి అని పనిచేస్తాడు ఆయన. ఇంకా శ్రీనివాసులు అని ఒక మేనేజింగ్ పార్ట్నర్ కూడా. వీళ్ళు ఒక మనసన్పల్లి 5.5 ఎకరాల్లో ఒక లేఅవుట్ చేశారు. ఈ లేఅవుట్ ఇంకా ఈ నెంబర్ రావాల్సింది. ఇట్లా ఉండగా ఇక్కడ ఉన్న సర్పంచ్ ఉప సర్పంచ్ భర్త ఉప సర్పంచ్ నిఖిత వీళ్ళు ఈ
దీనికి నెంబర్ మీరు ఫ్లాగ్ పెట్టారని చెప్పేసి ఫ్లాగ్ని వాళ్ళు తీసేశారు. దాని మీద వీళ్ళని అప్రోచ్ కాగా మాకు 5.5 లక్షలు ఇస్తే మాకు ఎలాంటి మీకు ఇబ్బంది ఉండదు అని వీళ్ళు బెదిరించారు. లేకపోతే మీరు వ్యాపారం చేసుకోలేరు, ప్లాట్లు అమ్ముకోలేరు అని బెదిరించారు. దాంతో అక్కడ మళ్ళీ ఎంపీఓ కూడా 2 లక్షలు ఇవ్వాలి ఆయన కూడా బెదిరించారు. దాంతో వాళ్ళు మా దగ్గర 3 రోజుల క్రితం కంప్లైంట్ ఇచ్చారు. ఆ కంప్లైంట్ మేము విచారణ చేశాము. విచారణలో ఇదంతా ప్రూవ్ అయింది, కరెక్ట్ అయింది తెలిసింది. ఈరోజు ఆయన ఎంపీఓ 2 లక్షలు, వీళ్ళు 5.5 లక్షలు ఇక్కడ తీసుకుంటారని మీరు పట్టుకున్నారు. मलकपेट पुलिस ने एक 2.5 साला मासूम लड़की के अगवा के केस को अंदरून 24 घंटे हल किया और उस मासूम लड़की को अगवा कुनिंदों से आज़ाद करवाया गया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार IPS ने इस केस के सिलसिले में मीडिया को तफसीलात बताई। उन्होंने बताया कि 27 जनवरी को मज़कूरा वाक़या पेश आया था, जबकि 2.5 साला लड़की का अगवा किया गया था। एक शिकायत मिलने के बाद मलकपेट पुलिस ने इस सिलसिले में कार्रवाई की। उन्होंने मलकपेट पुलिस की सताइश की और केस के सिलसिले में मीडिया को तफसीलात बताई। మన మలక్పేట్ పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్లో ఒక బేబీ కిడ్నాపింగ్కి కేసు రిజిస్టర్ అయింది. ఇదిలో కంప్లైనెంట్ పేరు సుదుగు అజయ్, సన్ ఆఫ్ లేట్ ఉపేందర్, ఏజ్ 27 years, ఆక్యుపేషన్ ర్యాక్ పికర్స్ ఉన్నారు, మూసారాంబాగ్ మలక్పేట్లో. ఈ కిడ్నాపింగ్ కేస్ మన జాయింట్ సిపి ఈస్ట్ జోన్ రమేష్ రెడ్డి గారు నేతృత్వంలో స్పెషల్ టీమ్స్, స్పెషల్ పార్టీ ఫార్మేషన్ తర్వాత 24 hours हैदराबाद सिटी पुलिस मलकपेट पुलिस स्टेशन लिमिट में एक किडनैपिंग हुआ था 27 जनवरी को रात में, और विद इन 24 hours ईस्ट जोन पुलिस हमारे जॉइंट सीपी रमेश रेड्डी के लीडरशिप में ये केस को डिटेक्ट किए और बेबी को बिल्कुल सलामत हालत में रिकवर भी किए। अक्यूज भी अरेस्ट हुए। जैसा कि आप जानते हैं, ये अर्ली मॉर्निंग जब पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करने अजय जो 27 years के हैं और रैक पिकर्स का काम करते हैं, मूसाराम बाग फुटपाथ पे रात में ये इंसिडेंट हुआ जब ये लोग सो रहे थे। और सुबह लगभग 1:30 मिडनाइट में जब इन्होंने नोटिस किया कि इनके छोटी बच्ची जो लगभग 2 साल 6 महीने की है मिसिंग है, तो आकर ये लोग पुलिस स्टेशन में कंप्लेन किए। और उसके बाद हमारे जॉइंट सीपी और उनके पूरे टीम मेंबर्स सीसीटीवी के हेल्प से, लोकल कम्युनिटी के सपोर्ट से और लोगों से बात करने से पता चला डिस्क्रिप्शन ऑफेंडर के बारे में, और बहुत जल्दी विद इन 24 hours ये के श्रवण कुमार जो इस केस का अक्यूज्ड है, ऑटो ड्राइवर का काम करता है और रहने वाला गोलनाका अंबरपेट हैदराबाद का है। ओरिजिनली ये पालेम विलेज बिजनेपल्ली मंडल महबूब नगर का है। इसको इन्होंने अरेस्ट किया और इसके पास से ये किडनैप्ड बेबी को बरामद भी किए। ये श्रवण कुमार जो अक्यूज्ड है, ये अल्कोहल का एडिक्ट है और इसके पहले प्रॉपर्टी ऑफेंसेस में भी बहुत पार्टिसिपेट किया, बाइक थेफ्ट और इस तरह के दूसरे काम में। इसमें हैदराबाद कमिश्नरेट में मलकपेट और काचीगुड़ा में 4 केसेस हैं, राजकोंडा कमिश्नरेट में सरूर नगर में 3 और LB नगर में 2 केसेस हैं। और ये लेकिन पहली बार इस तरह का किडनैपिंग का केस किया। इसका मोटिव ये था कि जो कुछ चाइल्डलेस कपल हैं उनको जाकर ये बच्चे को बेचेगा और जिससे उसको कुछ पैसा मिलेगा। तो इस सिलसिले में जो हमारे पुलिस ऑफिसर्स जो इन्वेस्टिगेशन किए, उसमें जो एक बाइक ये चोरी किया था, इस बाइक का भी रिकवरी हुआ है। और हमारे जॉइंट सीपी रमेश रेड्डी के लीडरशिप में हमारे एडिशनल DCP के मुरलीधर और उनके साथ N वेंकटरमणा ACP मलकपेट और पूरे ऑफिसर मिलकर ये केस डिटेक्ट हुए एक रिकॉर्ड टाइम में। ऐसे मौके पे मैं आपसे ये भी शेयर करना चाहता हूँ कि हैदराबाद सिटी पुलिस का कमिटमेंट जो खास करके क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन है, वो हमारा टॉप प्रायोरिटी है, उसको डिटेक्ट करना। और अभी तक ऑपरेशन स्माइल के तहत
2021 ईयर में 333 बॉयज़ एंड 43 गर्ल्स का रेस्क्यू हुआ है, टोटल 376, और टोटल 2018 से अभी तक 2400 बच्चों का रेस्क्यू हुआ। इसमें अभी तक हम लोगों ने इस साल 61 केसेस बुक किए हैं। 277 बच्चों को उनके पेरेंट्स को दिया गया, 99 बच्चों को रेस्क्यू होम में दिया गया, और इस पूरे ऑपरेशन में लगभग 64 पर्सन्स की गिरफ्तारी भी हुई है। टेक्नोलॉजी हमेशा हैदराबाद सिटी पुलिस का एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है, और इसमें हम लोग जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, ख़ास करके दर्पण टेक्नोलॉजी, उसका बहुत यूज़ है। ऐसे मौके पे हम लोग एक बार फिर से अपील करना चाहेंगे रेसिडेंट वेलफेयर। गच्चीबौली में एक मारूफ होटल के करीब कार में अचानक आतिशबाजी हादसा पेश आया। तफसीलात के मुताबिक रेडिसन होटल के करीब ठहरी एक सेंट्रो कार में अचानक आग भड़क उठी। फौरी तौर पर फायर अमले को मुतल्ला किया गया, जिसके बाद फायर अमले ने मकामे हादसे पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। ताहम उस वक्त तक कार तकरीबन जल चुकी थी। इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम पुलिस ने इस सिलसिले में ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। फिर कोई भी नहीं है, अम्मी कोई भी नहीं है अंदर। अल्लाह अल्लाह अकबर। जीडीमेटला पुलिस ने सरखाशुदा मोबाइल फरोख्त करने की कोशिश करने वाले एक मुलजिम को हिरासत में लिया और उसके कब्जे से 30 से ज़ायद मोबाइल फ़ोन्स जब्त किए। तफसीलात के मुताबिक 30 साला शेख महबूब को जीडीमेटला पुलिस ने उस वक्त हिरासत में लिया जब वो सरखाशुदा फ़ोन फरोख्त करने की कोशिश कर रहा था। उसके कब्जे से 30 से ज़ायद मोबाइल फ़ोन जुमला मालियती 7,25,000 रुपये बरामद किए गए। मज़कूरा फ़ोन्स में से 6 फ़ोन्स के मालिकीन की शनाख्त की गई है, जबकि 29 फ़ोन के मालिकीन की शनाख्त होनी बाकी है। महेश नरसिंहलू एसआई, श्रीकांत रेड्डी, बालकृष्ण, प्रभाकर, SHO जीडीमेटला का सुपरविजन में एक आदमी को पकड़ के चेक करे तो उनका जेब में वो 3-4 फ़ोन, स्मार्टफोन, एंड्रॉयड फ़ोन में है मिले। इन्हों कई को किसका बोले तो किसका कहाँ से लाए बोले तो इन्हों प्रॉपर रिस्पांस नहीं दिए। पुलिस स्टेशन को आके इंट्रागेशन करे तो पूरा कन्फेस करे। इनके साथ श्रीनिवास बोल के एक रिसीवर है, टी शॉप है, उनको डीडी कॉलोनी में, उनको पास पूरा 35 फ़ोन्स रिकवर करे। पूरा फ़ोन्स एंड्रॉयड फ़ोन्स है, स्मार्टफोन्स है, उसमें वीवो, ओप्पो और रियलमी, सैमसंग, ये अबव 25,000 का वैल्यू का कॉस्टली फ़ोन है, तो पूरा रिकवर करे। अभी तक 2 केसेस उनके ऊपर रजिस्टर करे। 35 में 2 कंप्लेंट्स मिले, बाकी कंप्लेंट्स वाला किसका फ़ोन है कौन है नहीं मिले, वो वेरीफाई कर रहा। और आदमी को रिक्वेस्ट कर रहा फ़ोन कौन लॉस हो गया, उन्होंने आके पुलिस स्टेशन में इंक्वायर करके बताए तो प्रॉपर इंक्वायर करके लीगल प्रोसेस करके उनको हैंड ओवर कर देते। कितना फ़ोन है सब टोटल? टोटल 35 है। महंगा फ़ोन है? हाँ, स्मार्टफोन है, पूरा स्मार्टफोन है, अबव 25,000 वैल्यू है और पूरा नया फ़ोन है, पुराना कोई भी नहीं है। ये 10 दिन 15 दिन का अंदर ले लिए सो है, वैसे तो नहीं है, वेरीफाई कर रहा हूँ और उनको पुलिस कस्टडी ले लेते हैं, कस्टडी ले लेके और बीजेपी रुकन असेंबली गोशामहल राजा सिंह को खुसूसी सेशन जज नामपल्ली कोर्ट ने पुलिस फोर्स को धमकाने के इल्ज़ामात के तहत 1 साल की सज़ा सुनाई। तफसीलात के मुताबिक साल 2015 में बुलारम पुलिस की जानिब से दर्ज किए गए केस के सिलसिले में सज़ा सुनाई गई। ताहम अदालत ने राजा सिंह को ज़मानत दी और सज़ा को 1 माह तक मुलतवी किया ताकि हाई कोर्ट में इस सिलसिले में अपील दायर की जा सके।
आखिर में हम खबरें एक बार फिर। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को रियासत भर में फरोग देने के लिए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से इक़दाम जारी। रियासती वजीर IT KTR ने वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के वर्चुअल सेशन से किया खिताब। पाँच फरवरी से खानगी दवाखानों में कोरोना वैक्सीन देने का नज़्म किया जाएगा, डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन का बयान। हुसैन सागर की खूबसूरती में इजाफे के लिए हमडा की जानिब से तामीरी काम आखिरी मराहिल में। सयाहों के लिए पुरकशिश बनाना काम का मकसद। रूबी न्यूज़ की खुसूसी रिपोर्ट। मलकपेट पुलिस ने अंदरून 24 घंटे 2.5 साला मासूम लड़की के अगवा के केस को हल कर लिया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद की मीडिया कॉन्फ्रेंस। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं अख्ताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।